It's a great journey that you have traversed through a lot of obstacles. You chose the a more unique path, Yes. going to Wrexham University. Now that you're working here, probably you are also studying HR. You might find a role later on in HR. From the money that you can save, with that money you can actually. We are in Leicester versus Chester. Yes. What would you suggest to the students? कौन सा city better है पढ़ने के लिए? Connections is important. आपकी जो communication skills Sorry, है. connections बनाओ. कैसे बनाओ? I got stuck somewhere, and I got a message from one of my director that we got to know more good things about you at the place where you were stuck, and you find your own way. If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. So that's also like really great. I think that's a great career projection. But is he thinking of doing something in exports, imports? What the background was there for both of you guys? He came in contact with my dad, and he told my dad that okay पापा एक काम करते हैं, let's start. आप दुबई में तो कर ही रहे हो, तो यूके में भी करते हैं. So अभी वो उस डिस्कशन में है कि अभी आगे चल के क्या होता है. क्या होता है? क्योंकि ये तो मैं आपको सही बात बताऊँ तो मेरे घर में मुझसे ज़्यादा उमंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है. So he is like Umang is your younger brother? No, Or your husband? my husband. Okay. So उनको ज़्यादा मतलब ऐसे सिर पे चढ़ा के रखा. हाँ, नहीं वो तो होता ही है. देखो इंडियन फैमिलीज में हाँ. you get pampered as a Yes. son-in-law. Yeah. But और he's talking business, so Yes. of course But Gujarati obvious- family में हाँ. business is number one. That is really great, and see that you have an opportunity. That's an unexplored area, and mangoes everybody loves. Everybody loves mangoes. और इवन आपकी आप महाराष्ट्र की जो आम होती है और ये जो वलसाड़ की जो वलसाड़ी हाफूस होती है वो बहुत फेमस है. बहुत फेमस है. बहुत फेमस. तो इवन व्हेन माय डैड स्टार्टेड डूइंग दिस ही आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. सो दादाजी ने ये इम्प्लीमेंट किया, पापा ने थोड़ा बढ़ाया, और उसके बाद में अभी मेरे भाई जो है और बट ऑब्वियस मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये लोग अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उसके एंड अंदर. आपके पास पूरी एजुकेशन है, तब आप पूरा लाइसेंस ले सकते हैं, एंड यू कैन बी सर्टिफाइड इन इंडिया एज वेल. सो इट्स अ ग्रेट जर्नी that you have traversed through a lot of obstacles. You chose the a more unique path, Yes. going to Wrexham University. You had a great time. Your faculty supported you in this whole time. You experienced Wales, which not many people do. Now चेंज, किसी को चेंज पसंद नहीं आएगा. हाँ. अभी मैं 2 साल से आई वॉज देयर इन चेस्टर सिंस लास्ट 2.5 years, एंड व्हेन आई केम हियर आई वाज लाइक नो, बट आई हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग. अभी मैं ऐसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकती. मैं खुद इंडियन हूँ, हाँ, और मैं इंडियन को देख के मैं मना नहीं कर पाऊँ. Right. क्यों मना करूँ मैं? हाँ, पर वो तुमको अभी 2 साल हो गए, यू स्टार्टेड गेटिंग अडेप्टेड इन न्यू थिंग्स, बट आपको वापस से ज़ीरो से शुरू करना ही पड़ेगा. गुरु से शुरू करना ही पड़ेगा. So if it is starting, you have to start from zero. In regards to my husband, he is picking Scouts. Is a Liverpool SN. तो अभी उनको वो SN भी अभी उनको क्या है कि वो अगर मुझे मॉन्ग करना होगा, मुझे परेशान करना होगा ना, तो वो लैंग्वेज में बात करेंगे. और इधर स्काउट्स एसेंट, फिर बर्मिंघम में आप जाओगे तो वहाँ पे एसेंस चेंज हो जाएंगे. हाँ. तो उनको ये सारे एसेंस जो है वो अभी उनको आने लगे. Because he's बहुत- with a very multicultural team, Yes. and he's adapting with them. So वही होता है, even if you try to adapt somebody's culture 1%, 1%. they see the effort, and when you see the effort, they give you all the love, and they make you part of the community. So showing that initiative is very important, and then of course you learn and build on it. So now that you're working here, probably you are also studying HR. You might find a role later on in HR. Even if not, you are okay to be going back to India and building a career there. What about your husband? Is he okay going back to India? Yeah, so 2 days ago I gave him a call and I was like, मैं यहाँ से रिटर्न ही हो रही थी, जॉब से रिटर्न हो रही थी, तो मैं घर पे ही जा रही थी. तो मैंने कहा मैं ऑन द वे हूँ, पर टाइम निकाल लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है. तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा अभी न्यू रूल्स आए हैं और मुझे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं. हो सकता है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ स्पॉन्सरशिप मिल ही जाएगी, आपको मिल जाएगी या मुझे मिल जाएगी, पर एज़ पर सैलरी थ्रेशोल्ड के हिसाब से देखने जाए तो इट्स मोर देन इम्पॉसिबल. मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. फिर मैं गई घर पे, डिनर करने के बाद में हम बैठे तो फिर मैंने बोला आपका क्या सोच? कोई बात नहीं, अभी मेरे पास यहाँ एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं जहाँ कर रहा था वहीं पे मुझे मिल जाएगी.
ही इज़ सो मच कॉन्फिडेंट इनफ दैट ही वाज लाइक मैं जहाँ था वहीं पे मुझे वापस से जॉब मिल जाएगी, एक्चुअली गांधीनगर में। सो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, सो उनको उसमें कोई इशू नहीं होगी। और मुझे उन्होंने बोला कि हाँ, और आप भी हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास डिग्री आ जाएगी, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपको भी मिल ही जाएगी, उसमें कोई नहीं, ये मूव भी सही है, मैं एग्री करता हूँ इसके अंदर। सो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। So I mean you are saying why I'm asking this question is it's a negative question. ये सब सवाल हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि यार ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, is it if I have to come back to India then was this whole experience still worth it? इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अभी आप यहाँ का एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो वहाँ से लेके आए थे, आपने यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट किया, यहाँ से भी आप कुछ लेके जाओगे ना, तो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर आप इंडिया में जा रहे हो तो ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश स्टडीज़, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बिज़नेस देख रहे हो और आप जो कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ के लोगों को भी पसंद तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। And do you think इस टाइम में especially because your spouse was here so मतलब was also working full time, net 2 साल MBA 2 साल PSW एंड बीच का थोड़ा टाइम है तो करीबन 4.5 साल होंगे मोटा माटी आपके पास यहाँ पे। 4.5 साल में नेट सेविंग करके जाओगे या आप कुछ पैसा लग जाएगा? नहीं, नेट सेविंग करके जाएंगे। नेट सेविंग करके जाएंगे बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा वही अपना नॉर्थ में बनिया एंड गुजरात बिजनेसमैन तो है ना, तो वी विल एटलीस्ट सेव सम मनी। ऐसा नहीं है कि हमारा अपना पैसा लग गया, कुछ पैसा सेव करके जाएंगे जो आप अपने बिजनेस में वहाँ भी लगा सकते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज यू गाइज हैव सम बैकग्राउंड ऑफ एक्सपोर्ट, देर आर सम सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ाज ऑल्सो अवेलेबल where you can start a business here. From the money that you can save, with that money you can actually start a business here where which could be import of mangoes or other items. So right now my suggestion would also be to connect with certain immigration experts who can share more ideas. We are trying to meet one friend's friend. He's in Edinburgh. And he has opened a food truck. The idea of that food truck is that with that food truck he's been able to self-sponsor himself to stay in the UK because he has started a business. So now that's also, as we understand and unfold some of those opportunities, I'll share them with you. Maybe it might be of some value somewhere. And if you guys also want to learn about more such experiences, subscribe to our channel that you can stay updated with whoever are wonderful people I'm meeting and learn from their experience. Now we are in Leicester versus Chester. Yes. What would you suggest to the students? कौन सा city better है पढ़ने के लिए? So guys, let's take a small pause and let me tell you that I counsel hundreds of students looking to study abroad every month. And I am here to help you guys, not just with understanding your profile, which country or university is the best one for you, but help you through the admission process. And me and my team will get you your visa on time. And if you want a one-on-one counseling session with me, please go into the description. There is a link to my Calendly and you can book a one-on-one slot with me. And let's get back to our video now. कि चेस्टर में मैं अभी ये वीकेंड में ही जाके आई, तो वहाँ पे कुछ बंदों से मैंने मिला। उसके बाद में मैंने उनसे ये सेम क्वेश्चन किए वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर जो नज़दीक में है। बिल्कुल। और जो मेरे लास्ट हाउसमेट्स रह चुके हैं जो अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा कि क्या सोच रहे हो अभी, आपका क्या है प्लान, कुछ सोचा है? तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है, बट वी विल नीड सम टाइम, हमको थोड़ा टाइम चाहिए होगा और हमें आगे सोचना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर वी विल गो बैक टू इंडिया। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। तभी बच्चे सोच में हैं, मतलब दे आर कंफ्यूज अ लिटिल बिट कि भाई करना क्या है। हाँ, और ये रूल्स ऐसा है ना जो पूरा किसी के दिमाग में उतर ही नहीं पाया है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके अंदर। तो अभी इसके ऊपर भी बच्चों को पूरा पाथ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ है कि कुछ बोल रहे कि एज़ पर न्यू एंट्रेंट जो पहले आए हैं वो ओल्ड एंट्रेंट्स पे कर सकते हैं, और जो नए आए हैं वो न्यू एंट्रेंट पे। अभी उनको ओल्ड एंट्रेंट न्यू एंट्रेंट का डेफिनेशन ही क्या है ये नहीं पता है। तो आई थिंक आई विल ऑल्सो व्हाट आई विल डू इज व्हेन आई रीच बैक इंडिया एंड राइट नाउ देन आई विल हैव मोर टाइम टू डू रिसर्च। विल डू अ बिग फुल सेशन ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली द रूल्स आर। Of course, I'm not an certified immigration expert, but we'll involve those people into the discussion. So the idea is that people should have the clarity, and then people should start acting early.
बिकॉज है। बच्चे DMU में हो गए, चेस्टर में हो गए, देर ऑल अच्छा करेंगे। एंड आज क्योंकि वो प्रॉब्लम आज की नहीं है, वो प्रॉब्लम शायद होगी अभी ग्रेजुएट कर रहा तो 2 साल बाद की है, आज सोच ही नहीं रहे हैं। एंड वो अगर 1.5 साल बाद सोचेंगे तो फिर कुछ करने लायक बचेगा भी बचेगा ही नहीं। नहीं। सो वी नीड टू एक्ट टुडे एंड आई थिंक दैट्स समथिंग वी ट्राई टू टेल एवरीवन, बट इफ यू गाइज आर नॉट गोइंग टू लिसन, मेरा ये सब ऑल दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट। सो गाइज Yes. प्लीज व्हेन यू लर्न समथिंग इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंटेशन के पैसे हैं, नॉलेज के कोई वैल्यू नहीं है। सो लर्न बट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट, एंड इफ यू आर थिंकिंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पे हाँ। टाइम बहुत फास्ट जाएगा, अरे। बहुत फास्ट जाएगा। आप आप सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा Time और निकल आपके जाएगा। पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ 2 या 3 महीने के वीज़ा है, 2-3 महीने में आप सोचोगे कि ये प्रोसेस करे, वो प्रोसेस करे, इधर से प्रेशर करे। इतना रहता है Pressure दिमाग में कि इतना- आदमी सोच ही नहीं, मतलब अब उस समय सोच ही नहीं पाओगे। हाँ, आपके पास 3 महीने हैं, वो 3 महीने कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा एक बताते हैं, थोड़ा एक ओवरव्यू में आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर सम ऑफ योर स्किल्स व्हिच हैव ट्रांसलेटेड इनटू सक्सेस फॉर यू। आपकी जॉब लगी, आपने केयर होम में पीछे पड़ के अप्लाई कराया, आपकी क्या स्किल्स है जिसको देख करके आपको लोगों ने जॉब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शंस बनाओ, कनेक्शंस इज इम्पॉर्टेंट। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स सॉरी, है, कनेक्शन बनाओ, कैसे बनाओ? लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, रीच आउट करो। आप रीच आउट कर रहे हो, अगर रिक्रूटर्स को, डायरेक्टर्स को, HR मैनेजर्स को, स्टे इन टच विद देम। कहीं ना कहीं से आपको पता नहीं, जैसे बाय गॉड ग्रेस मुझे इंटरनल रिक्रूटमेंट से मुझे मिल गया, कहीं आपको भी मिल जाए। और स्टे बी पॉजिटिव। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फ्री होते हैं, आप वहाँ से वो सर्टिफिकेट्स करो, वो सर्टिफिकेट्स करके आप लिंक टू योर एरिया ऑफ Yes. एजुकेशन और द जॉब यू आर लुकिंग फॉर। यस, और वो सर्टिफिकेट्स करके आप उसमें स्किल्स, उस हिसाब से स्किल। फॉर एग्जांपल मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, मुझे पता है कि मुझे GDPR हो गया, मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हो गए, और HR रिलेटेड हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, रिक्रूटमेंट रिलेटेड हो गए, सारे ये सारे स्किल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं वो सारे सर्टिफिकेट्स करूँगी। वो सर्टिफिकेट्स मैं अपने रेज्यूमे में डालूँगी, वो सारे सर्टिफिकेट्स मैं अपने लिंक्डइन पे अटैच करूँगी। अगर अगर फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कंपनी ये सारे स्किल्स देख रही है और वो स्किल्स आपके अंदर है 110%, वो आपको रीच आउट करेंगे। टेलर योर रेज्यूमे, टेलर योर लिंक्डइन एंड देन गो फॉर इट। और जब तक आपको कोई हाँ ना बोल दे ना, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स हैं। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके अंदर स्किल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, वो शो करना नहीं चाहते। आप शो नहीं करोगे तो होगा कैसे? एंड मतलब डोंट बी कॉन्शियस कि यार वो बुरा मान जाएगा, क्या होगा, मेरे को ऐसा देखेगा वैसा देखेगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि डजेंट मैटर। सो यू हैव टू बी व्हाट आई से हिंदी में बेशरम, यू नो, शेमलेस। बी शेमलेस। और अब पीछे पड़ जाओ इन द सेंस कि आप उनको पूछो, रेज्यूमे सेंड करो। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे बैठे, गवर्नमेंट कॉफ़ी बार एंड किचन, अभी यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है बाहर कि दे आर रिक्रूटिंग, बट आई नो समवेयर और द अदर पॉइंट दे माइट हैव रिक्रूटमेंट, दे माइट हैव स्पेस। गो टू द कंपनी वेबसाइट के बारे में ढूंढो, लिखो, कवर लेटर बनाओ, रेज्यूमे उस हिसाब से टेलर करो और रिक्रूटमेंट मैनेजर को ईमेल करो। सेंड करने के बाद में वीक के बाद फॉलो अप लो, क्या है सेंड इट माई रेज्यूमे, इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी जस्ट डू लेट मी नो। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है कोई पर्टिकुलर कंपनी में तो 5-6 पर्टिकुलर कंपनी पकड़ लो और उसकी करियर वेबसाइट पे जाके देखते रहो। Another student of ours said exactly the same thing, and that's how he landed a job in EY, because that job was actually never published on LinkedIn or any platform. वो EY के ही करियर पेज पे ही थी। तो आप करियर वेबसाइट पे भी देखोगे, वहाँ पे होती है जॉब्स, वहाँ से अप्लाई करो। और इवन आप किसी रिक्रूटर को या किसी भी कंपनी में कॉल करके आप पूछोगे तो यही बोलेंगे, स्टे ट्यून्ड ऑन आवर करियर वेबसाइट, इफ देयर इज एनी जॉब ओपनिंग we will find it there. यस। सो वो आपको यही बोलेंगे। व्हाट इज इसमें भी ऐसा होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट। Actually it is all about, I think, जो HR रिक्रूटर है वो भी इंसान है, हाँ, right? Everyone wants to be lazy, everyone wants to do lesser work. That if I am interviewing 5 people and I decide one, that person should join.
I run a company, and the biggest problem as a founder and as a person who's recruiting is that I will also do all the mehnat, all the hard work, interview people, and then we will give a job offer. Yes. And then that person will say one day before joining, will say, sorry, I have found something else, or I don't want, and not show up. So the time gets wasted and effort gets wasted. So everyone is looking for people who they are more sure of joining, and that is why referrals work. And the another thing is they might miss the candidate which is perfectly matched for Match that for them. particular role. Right. And they can miss. They Yes, can we miss. We miss. That's also absolutely true. So you are saying that what you have done well is, of course, you have tailored your resume, your LinkedIn profile. You have made connections. You've been persistent in following up and building those connections. You've posted on LinkedIn so as to stay relevant and be active on LinkedIn. Yes. So that the people you are building connections with also see that you are an active person Yep. and what's happening in your life. Apart from all of this, your communication is very good Thank you. and you are confident and you are open to talk to people, reach out and share. Yeah. So not just communicating well, but communicating confidently. Confidently. Which Yeah. makes me also, like when I'm talking to you, like, okay, यार शिवानी को पता तो है, right? अब नहीं पता भी होगा, but you'll talk so confidently, but Yes. that it inculcates confidence in the other person. Yes. So I think that's again a very strong skill. which a lot of our students have shared कि यार ये तो होना ही चाहिए if you want to get work in it. And even if you are thinking that you are a fresher and you won't get the job, trust me, I was a fresher. I was fresher. और मुझे इसके बारे में मैं अगर बोलूँ ना तो पता ही नहीं था. I was clueless. So मैंने उसके अंदर क्लू लेने के लिए रिसर्च की. And even there are company who will invest in you. मैंने ये पोस्ट किया है लिंक्डइन के ऊपर. So मैं वही वापस से मैं रिपीट करूँगी कि there are company who will invest in you, and if they will find the worth in investing in you, they will give you what you want and what their company is looking for. क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट्स जाने नहीं देंगे कि जो उनके लिए प्रॉफिट हो, उनके लिए एसेट हो. Right. Right? Who would want to? The biggest difficulty in running a company is getting good people. Good people. And if you have good people, your company will do really well. Yes, and if company is investing in you, I'm myself working in 3 months. I have got the relevant trainings. I've got the relevant ideas how to work in a proper way. I got stuck somewhere, and I got a message from one of my director that we got to know more good things about you at the place where you were stuck, and you find your own way from that particular situation. So वो आपको बताता है कि अभी डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं है, उनके पास बहुत काम है. My director have 12 other sister homes to look after. How he got to know that I was stuck somewhere and I took myself out from that particular situation in this way. And then he emailed me that we got to know about your nice positive feedback. Yeah, Even I got तो आपके मैनेजर ने ऊपर बताया होगा, उन्होंने किसी ने उनको डायरेक्टर तक बात पहुंची. डायरेक्टर तक बात पहुंची, डायरेक्टर बात पहुंची, एचआर तक बात पहुंची, रिक्रूटमेंट मैनेजर तक बात पहुंची. अभी सबको शाबाशी मिल गई, चलो सही बंदे को लेके आया हुआ है. हाँ, रिसेंटली मुझे एज अ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड Wow, मिला. congratulations. Thank you very much. Congratulations. So 3 months, in these 3 months, I have learned a lot, earned a lot. So surviving, I have learned a lot, I have earned a lot, and I will be learning a lot from my And earning a seniors. lot, yes, Yeah, too. and be earning a lot. Can you tell us about the situation where you got stuck and how you came out? So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.